اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 3 اور آخری 5-6 آیات ہیں، آج انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولتزعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ اسے آیت مدانیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اسی آیت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم بدین، کیا کرو؟ قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، تو تم آپس میں کیا کیا کرو؟ فاکتبوہ، پس اس کو لکھ لیا کرو۔ قرض جب لیتے ہیں اور پھر اس کا لین دین ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ لکھ لیا کرو، یعنی جو لکھنے والا ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ حق ہے اس پر کہ وہ اس کو لکھ کر دے، جو قرضہ لے رہا ہے نا، لینے اور دینے دونوں کو لکھوا لینا چاہیے، یہ ان پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ربہ، جو سب کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر مقروض کم عقل ہو، سفیہن کم عقل، او یا پھر ضعیفن کمزور ہو، او یا پھر لا یستطیع استطاعت نہ رکھتا ہو، ایو ملا ہوا فلیملل، یعنی لکھوانے کی، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کو لکھوا کر دے دے، وہ بھی عدل کے ساتھ۔ واستشہدوا، اس پر لے کر آؤ، یعنی گواہ، کتنے گواہ آئیں گے؟ شہیدین، 2 من رجالکم، مردوں میں سے 2 مرد گواہ ہوں گے۔ اور فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو فَرَجُلٌ، ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں، یا پھر 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ممن ترضون من الشہداء، یعنی اگر وہ راضی ہوں، پسند کریں، کس کو؟ گواہوں میں سے، جس کو بھی پسند کرے ان کو بلا لیں۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی عورتیں 2 اسی لیے کہ اگر ایک عورت بھول جائے کہ بھئی اس نے کس طرح لین دین کیا تھا تو دوسری اس کو یاد دلوا دے گی۔ وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کے لیے بلایا جائے تو ما دعوا، وہ انکار نہ کریں۔
वला और ना तसअमू अन तक्तुबूहु, यानी वो सगीरन और कबीरन, छोटा और बड़ा, यानी उसकी मियाद तक उसको छोटा या बड़ा भी ना करें, इला अजली, जो दस्तावेज़ात हैं उनमें तसाहुल यानी सुस्ती भी ना करें। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए अक़सतु इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक आदलाना है, व अक़वमु लिश्शहादाति व अदना अल्ला तरतबू, के तुम गवाही देने के लिए, यानी ये सारा जो है लेन देन और उसके लिखने के बारे में है। अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारे रब के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा है। और दूसरी बात यह है कि शकूक को शबात दूर करने के भी बहुत करीब है, यानी तुम शक में ना रह जाओ कि मैंने इतना दिया था, अगला शक में ना रह जाए कि मैंने इतना लिया था। तो अगर तुम यहाँ पर है कि हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुम अला तक्तुबूहा, आपस में दस्त बदस्त हाथ के हाथ लेन देन करते हो और उसको नहीं लिखते तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। व अशहिदु इज़ा तबायातुम, आपस में खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लो। वला युदार कातिबुम वला शहीद, ना लिखने वाले को ज़रर पहुँचाओ ना गवाह को ज़रर पहुँचाओ। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़सूकुम बिकुम, अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम्हारा गुनाह होगा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है। वल्लाहु, और अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो ये सबसे बड़ी आयत है। एक तो सूरत इस मतलब कुरान पाक में इसको आयत मदानिया कहते हैं, और ये कर्ज के लेन देन के बारे में है। जब बंदा कर्ज ले तो दो फरीक हों, अगर वो लेन देन नहीं करते तो यकीनन उनमें कोई ना किसी बात को लेकर नोक झोंक लड़ाई, फिर वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते हसद कीना बुग़्ज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और हमारी जो शरीयत है उसकी मंशा है कि लोग आपस में बुग़्ज़ कीना और हसद इन चीज़ों से दूर रहें। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अपने माल को महफूज करना, उसके भी अल्लाह ने तरीके बताए हैं कि तुम उसको उस तरह महफूज कर लो जैसे मैंने बताया है, तो यकीनन तुम्हारा माल भी महफूज रहेगा, तुम्हारे रिश्ते भी महफूज रहेंगे। तो लिखने के बारे में यह है कि जिसको अल्लाह ने लिखना सिखाया है वो लिखने से इनकार ना करे। अगर वो कमज़ोर है या फिर इस्तात नहीं रखता कि उसको लिख सके या लिखवा सके, तो उसका जो वली है वो उसको लिखवा कर दे दे, लेकिन वो भी अदल के साथ लिखवा कर देगा। ये नहीं है कि फिर वो उसमें हेरा फेरी कर ले। हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अहल यानी घर वालों को सवाल से रोकने के लिए रिज़्क़ के हलाल की तलब में निकले वो अल्लाह के रास्ते में है, और जो शख्स अपने आप को भी सवाल से रोकने के लिए अल्लाह की राह में निकले वो भी अल्लाह के रास्ते में है। और फिर जो शख्स माल को अल्लाह की राह में नेकी के रास्ते में खर्च ना करे तो उसका माल मज़मूम है। और इसके बारे में कुरान की एक आयत है, वो आपको बताती हूँ। आयत सूरत अल-हमज़ा है और आयत नंबर 2 से लेकर 7 तक है। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। यकीनन आप बार बार पढ़ते होंगे, जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, उसने गुमान किया कि उसका माल उसको हमेशा इस दुनिया में रखेगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर चूरा चूरा कर देने वाली में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि चूरा चूरा करने वाली क्या चीज़ है? अल्लाह की आग है भड़कई हुई जो दिलों में चढ़ जाएगी। तो ये कुरान कह रहा है, अगर तुम ये समझते हो तुम्हारा माल तुम्हें दुनिया में रखेगा, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर फिर उसकी जो माइकल जैक्सन था उसकी मिसाल फिट आएगी। वो भी यही गुमान करता था ना कि दुनिया में मेरा माल मुझे बचा लेगा। इसी माल के गरूर में अपने आप को दुनिया में हमेशा रखने के चक्करों में उसने टीम्स तैयार कर ली, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, उसके जिस्म पर जगह जगह सुराख पाए गए। जिसे अल्लाह रखता है ज़िंदा, जब तक चाहे रखता है, कोई अपने आप को इस दुनिया में ज़िंदा बाकी नहीं रख सकता।
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माल को कसीर ज्यादा बनाने के लिए निकले वो शैतान के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते में वो है जो हलाल रिज़्क के लिए निकलेगा। फिर अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत तक आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसको लिख लो। जब बहमी रजामंदी से एक चीज का दूसरी चीज से तबादला किया जाए उसको कहते हैं बाय। क्या कहते हैं? बाय। इसमें सौदे को मबी और कीमत को समन कहते हैं। अब इस आयत में जिस बाय का जिक्र है वो ये है, मिसाल के तौर पर किसी बंदे की गंदम उतरने वाली है, उसने एडवांस में ही उसका सौदा कर दिया हो कि इतने मन मैं तुम्हें दूंगा और उसके पैसे उसने ले लिए हो, तो इसके बारे में इजाज़त है, बंदा ये बाय कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये है, एक तो वो लिखेगा, दूसरा गवाह होंगे, और तीसरा इसमें जो चीज़ है वो ये है कि वो जितने पैसे ले रहा है उसका वज़न भी उतना हो, उसकी कीमत भी आने वाले वक्त में उतनी ही होनी चाहिए। इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये आयत गंदम की बाय सल्म के मुतालिक नाजिल हुई, यानी गंदम की पेशगी अदायगी कर दी जाए, फसल कटने के बाद गंदम उस बंदे को हम देंगे। इसमें गंदम की मिकदार भी मालूम हो, उसकी मुद्दत भी मालूम होनी चाहिए कि इतने अरसे बाद गंदम हम आपको देंगे, ये भी उस बंदे को मालूम हो, और दूसरा ये भी मालूम हो कि इसका वज़न मिकदार भी इतनी ही होगी, तब वो करेंगे। यहाँ पर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम बयान करते हैं मैंने कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई शख्स एक चीज़ खरीदने के लिए आता है जो मेरे पास नहीं है, आया मैं उसके लिए बाज़ार से चीज़ खरीद लूँ? आपने फरमाया, तुम्हारे पास जो चीज़ मौजूद नहीं है उसको फ़रोख्त मत करो। तो इस हदीस की बिना पर तो यह है कि जो चीज़ मौजूद ना हो उसको फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत की बिना पर बाय सल्म की इजाज़त दी है। दूसरी हदीस है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो लोग 1 या 2 साल की मुद्दत पर फलों में बाय सल्म करते थे, तो आपने फरमाया, जो शख्स खजूरों में बाय सल्म करे उसका कैल कहते हैं वज़न को, वज़न मालूम हो तो यानी मिकदार भी मालूम हो, तो उसकी मुद्दत मालूम हो, तो ये फिर जायज़ है। यानी ये वाली जो बाय है कर सकते हैं, जायज़ है, लेकिन उसमें ईमानदारी से करना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस नियत से करें कि आप उसका रेट हाई है, मैं अपनी गंदम का सौदा भी कर दूं, पैसे भी ले लूं, तो हो सकता है कि जब गंदम कट रही हो, फसल जब होती है तब उसका रेट थोड़ा कम होता है, तो वो आम हो जाती है, तो वो ये सोचे कि उस वक्त इसका रेट कम हो जाएगा, तो अभी मैं हाई रेट पर इसको बेचकर फ़ायदा ले लेता हूँ और बाद में गंदम उस बंदे को दे दूँगा, तो इस तरह जायज़ नहीं है। जायज़ इस सूरत में है जब आपको उसकी मिकदार, वज़न सब कुछ मालूम हो और आप इस नियत से ना कर रहे हो कि सिर्फ आपको मुनाफा मिले। आप इस नियत से भी कर सकते हैं कि अगले को इससे मुनाफा मिले। तो ये इसके बारे में है। फिर वही है कि आयत मदानिया के हुक्म का तमाम दयून को शामिल करना, यानी ये तमाम लेन देन के बारे में है आयत, जितने भी हैं कर्ज के लेन देन हो गए, फिर उनको लिखना, फिर उस पर गवाहों का आना, और गवाहों में ये है कि 2 मर्द गवाह होंगे, और अगर 2 मर्द नहीं है, 1 मर्द है तो 2 औरतें, क्योंकि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द की गवाही के बराबर है। औरतों को हर चीज़ में निस्फ कहा गया है हमारे दीन में, अक्ल के लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, ताकत के लिहाज से भी। औरत क्या है? आधी है मर्द की, तो गवाही में भी आधी है, इसीलिए 1 मर्द, उसकी गवाही कितनी औरतों के बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। फिर 2 के बारे में ये लिखा हुआ है, अगर एक औरत भूल जाए कि कर्ज में क्या कौन कौन सी बातें और शराइत रखी गई थी, तो दूसरी उसको याद दिला दे कि ये बातें रखी गई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस हमारी आयात में आई हैं। और आखिर में एक और चीज़ आई है, वो भी बता देती हूँ कि वा इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदु कातिबन, अगर तुम सफ़र में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो उस वक्त तुम क्या करोगे? सफ़र में मुराद कोई बंदा लंबे सफ़र पे जा रहा है, रास्ते में कोई बंदा मिल जाता है, उसके साथ उसका लेन देन मामला तय हो जाता है, और लिखने वाला नहीं है तो उस वक्त क्या किया जाएगा? तो लिखने वाला ना मिले तो कब्ज़ा दी हुई रहन की बिना पर उसका मामला जो है वो
मतलब फाइनल कर दो। फ़ाइन आमिना बादुकुम बादन फल्युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वल्यत्तकिल्लाह रब्बा। फिर अगर तुम एक दूसरे पर एतबार हो तो जिस पर एतबार किया गया उसको चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करे और अल्लाह से डरते रहो जो उसका रब है। वला तक तो मुशाहदता, और गवाही को ना छुपाओ। ममन यक्तुमहा फ़इन्नहु इस्मुन आसिमुन क़ल्बुहु, और जो शख्स गवाही छुपाएगा उसका दिल गुनाह आलूद है। वल्लाहु, और अल्लाह जानता है, बिमा तामलून अलीम, जो तुम करते हो अल्लाह तमाम को अच्छे से जानने वाला है। जब भी गवाहों को बुलाया जाए गवाह फौरन जाएंगे, लेकिन गवाहों को और लिखने वालों को कभी भी नुकसान न पहुंचाना। नुकसान से मुराद उनके पास जाकर उनको डरा धमका कर अपनी चीज़ में हेरा फेरी न कर देना कि तुम ये लिखा था तो इसकी जगह ये लिख दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह कहता है जो ऐसा करे उसका दिल क्या है, गुनाह आलूद है। अगली आयत है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अल्लाह ही की मलकियत है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम उसको जाहिर करो या तुम छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशाअ, जिसको चाहेगा वो बख्श देगा। व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसको चाहेगा अजाब देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आगे है आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही, ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया रसूल पर उसके रब की तरफ से। वल मुमिनून, और मोमिन भी ईमान ले आए। कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, और रसूलों में किसी के दरमियान फ़र्क ना करो। वक़ालू, तो उन्होंने कहा, समिअना व अतअना, हमने सुना और अतात की। गुफ़रानका रब्बना, ए हमारे रब तू हमारी बख्शिश फरमा। व इलैकल मसीर, हम तेरी ही तरफ लौटाए जाएंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। लाहा मा कसबत, जिसने जो कमाया वही पाएगा, यानी जो नेकी की उसने उसका नफ़ा पाएगा, जो बुराई करेगा वो उसका नुकसान पाएगा। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, कि हम भूल जाएं या गलती हो जाए तो उस पर हमारी पकड़ ना करना। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु, हम पर ऐसा भारी बोझ न डालना जैसा तूने अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले लोग थे उन पर डाला था। रब्बना, ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, कि ए हमारे रब, हम पर उन अहकाम का भी बोझ न डालना जिनकी हम में ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ फरमा। वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़रत अता फरमा। वरहमना, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, बेशक तू हमारा मालिक है। फनसुरना, हमारी मदद फरमा। अलल कौमिल काफिरीन, जो कौम हमारे खिलाफ काफिर खड़ी है उसके खिलाफ हमारी मदद फरमा। तो ये आखिरी आयत है सूरत अल-बक़रा की और बहुत ही फजीलत वाली आयत है ये। वो मैं आखिर में बताती हूँ, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि खातिर कल्ब की, यानी अपने दिल को अल्लाह की रुग़बत दिलाने, दुनिया की रुग़बत से दूर करने के लिए भी बंदे को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इसमें इमाम मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह ही की मलकियत है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम उसको जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर ये आयत बहुत शाक गुजरी,
वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नमाज, रोज़ा, जहाद और सदका का मुकल्लफ बनाया गया, यानी इन चीज़ों का हमें हुक्म दिया गया और हम ये करते हैं। ये ऐसे अमाल हैं जिनकी हम ताकत रखते हैं। अब आप पर जो आयत अभी अभी नाजिल की गई है उस पर अमल करने की हम ताकत नहीं रखते, क्योंकि इस आयत में मज़कूर है कि तुम्हारे दिलों की छुपी बातों का भी हिसाब लिया जाएगा। दिल में गैर इख्तियारी तौर पर भी तो बहुत से ख्यालात आते हैं इंसान के, तो उनका भी हिसाब लिया जाएगा। अच्छी चीज़ भी होती है, कभी कभी बुरे ख्यालात भी आते हैं, तो फिर ये हम इस पर कादिर नहीं हैं, वो साहब कहने लगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम इस तरह कहो जिस तरह तुमसे पहले किताब वालों यानी यहूद और नसारा ने कहा था कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, बल्कि तुम ये कहो हमने सुना और हमने अताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश के तालिब हैं। ऐ हमारे रब, हमें तेरी तरफ ही लौटना है। जब मुसलमानों ने इस तरह पढ़ा उनकी गर्दनें झुक गईं। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके बाद दोबारा आयत नाजिल की कि हमारे रसूल इस कलाम पर ईमान लाए जो उनकी तरफ उनके रब से नाजिल हुआ। तो इसीलिए मोमिन लोग जो हैं, तुम भी ऐसा करो, इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, और किसी रसूलों के दरमियान आपस में फ़र्क ना करो। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी बख्शिश के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। जब मुसलमानों ने ये कहा तो अल्लाह ताला ने पहले हुक्म को मनसूख कर दिया और फिर ये आयत नाजिल की कि अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाएगा, यानी किसी पर उतना ही बोझ डलेगा जितना वो उसका बोझ उठा सकता है आसानी से। यानी जो नेक काम करेगा उसको नेक अजर मिलेगा, जो बुरे अमाल करेगा उसको बुरे अजर मिलेगा। तो हम खुद मुकल्लफ हैं, चाहे नेक काम करें चाहे बुरे काम करें, इसका हमें अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। रास्ते भी अल्लाह ने दे दिए हैं, हमने सिर्फ उन पर चलना है। मर्जी है हम जिस रास्ते पर चलें, क्योंकि हमें नफ़ा और नुकसान अच्छे से पता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैंने ऐसा कर दिया, ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा भारी बोझ न डालना जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। और फिर अल्लाह ने फरमाया, हाँ मैंने ऐसा ही कर दिया। फिर लिखा कि या अल्लाह, जिनकी हमें ताकत ना हो हमें वो काम भी ना करने देना। फरमाया, हाँ मैंने ऐसा कर दिया। और फिर हमने कहा हमें माफ़ फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू हमारा मालिक है, काफरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मैंने कर दिया। तो यानी अल्लाह से जो चीज़ मांगेंगे वही मिलेगी। अब है हम और अज़्म। हम कहते हैं गुमान को, किसको? ये बहुत ही खूबसूरत तफसीर है इन आयतों की कि हम जो है कभी कभी ऐसा होता है कोई बात जहन में तसव्वुर करते हैं, हमारे जहन में ख्याल आता है, अमली तौर पर हम उसको करते नहीं हैं, लेकिन हम पूरा एक सोच लेते हैं। इसकी आसान सी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप किसी से नफ़रत करते हैं, आपके दिल में मतलब इतना उस पर गुस्सा या इतना गुस्सा या आपने दिल ही दिल में उसको मार ही दिया, दिल ही दिल में उसको मार दिया। आपने ये भी सोच लिया मैं इसको गन से मारूंगा, इसको चाकू मारूंगा, फलां जगह मारूंगा, ठा हो गई, आपने उसको अच्छे से मार दिया है, लेकिन अमली तौर पर आपने ऐसा किया नहीं है। ये हम होता है हमारा दिल, दो आंखों वाली जो हा होती है ना, हम, वो हम होता है। हे मीम, हम नहीं, वो तो हम सब होंगे ना, उसको हम कहते हैं। और इसके बारे में ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि इस मेरे बंदे ने जो गुमान किया उसको अभी लिखो नहीं, यानी उस पर जो है ना बुराई को अभी लिखो नहीं, लेकिन अगर वो उस पर अमल कर लेगा तो एक बुराई लिख दी जाएगी। इसी तरह जब बंदा हम में कोई नेक काम करता है तो अल्लाह फरिश्ते से कहता है इसने अभी वो काम किया नहीं होता नेक काम, लेकिन उसका एक नेकी लिख दी जाती है, और जब वो काम करेगा तो उसकी 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो वो अल्लाह तो हम पर इतना मेहरबान है। हम ये हमारे जहन में होते हैं, इसकी 3 किस्में हैं। एक होता है कल्बी, हमारा कल्ब गुमान करे, एक होगा जो हम
मतलब देखेंगे, उस वजह से हमारे जहन में कोई बुरा ख्याल आ जाए या नेक ख्याल आ जाए। और एक होगा जो हमारा जहन की पैदावार होती है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो हाजी से जैसे अचानक बैठे हैं, कोई अचानक ही किसी चीज़ का ख्याल आ जाए, खातिर है कि कोई हमें चीज़ बार बार तंग करती है कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। हदीस नफ्स है, जिस चीज़ का ख्याल है जहन उसकी तरफ रागिब हो, उसके हसूल के लिए मंसूबा भी बना ले लेकिन अमल ना करें। और तीसरा है हम यानी गालिब चीज़ उस चीज़ की हासिल करने की हो लेकिन मगलूब ना हो, यानी गालिब तो हो, मगलूब यानी ये है कि बुराई गालिब ना आए, अच्छाई फिर सामने आ जाए कि हमारा दिल कहे नहीं नहीं यार ये तो बुरी चीज़ है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस पर अज़म वो होता है जो इरादा भी पुख्ता हो जाए और फिर हम नियत भी कर लें और फिर सिर्फ उसके अमल की देर होती है। तो इन चीज़ों को ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अगर ऐसा होता भी है, मेरे साथ भी होता है, ये फितरी चीज़ें हैं। तो इसका यह है कि जब भी बंदे को कोई ऐसी सोच आए जो बुराई की हो तो फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। अगर ख्याल बार बार और ज़्यादा हमें तंग करने लग जाए तो हमें वज़ू कर लेना चाहिए। वज़ू करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए तब तक हमारा जहन मुतनफ़िर ना हो जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की तस्बीह शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। फिर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, माजा ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अपने दिल में जिन कामों के मंसूबे बनाती है जब तक उनकी बात ना करे, उन पर अमल ना करे, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाता है। यानी अल्लाह की ये शान है, हम जब तक अपनी ज़ुबान पर ना लाएं, अमल नहीं करेंगे, हमें उसका कोई गुनाह नहीं मिलेगा, सोचने से गुनाह नहीं मिलेगा, ये बात जहन में रखें। लेकिन अगर हम अपनी ज़ुबान पर ले आते हैं कि हमें ऐसा कर ही लेना चाहिए और फिर अमल भी कर लें तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि हम गुनाहगार हो गए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इस्तग़फ़ार शुरू कर दें। और आखिर में है कि सूरत अल बकरा का जब इफ्तिताह हुआ था तो उसमें चंद बातें थीं और सबसे पहली बात थी ईमान वालों की सिफ़ात अयून थी। जिन्होंने लेक्चर लिए थे उनको अच्छे से याद होगा। ईमान वालों की सिफ़ातें थीं कि ईमान वाले वो हैं जो नमाज कायम रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और ईमान वालों की मज़ीद सिफ़ात में हमने देखा था कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके फ़रिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हक सदाकत है, हक्कानियत है, उसको उस तरह जानते हैं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। आखिरी आयत भी वही है कि ईमान वालों की सिफ़ात आई हैं। क्या आई? ईमान वालों की सिफ़ात आई कि तुम भी उस तरह ईमान ले आओ जिस तरह तुम्हारे रसूल ने हमारी आयत को माना है। जैसा फिर फरमाया, तुम में से जो मोमिन है वो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले होंगे। और उसके बाद हिदायत भी यही है कि जो लोग अल्लाह और उसकी किताब और उसके रसूलों को मानते हैं फिर उस किताब में जो लिखा है उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। एक मोमिन के लिए हिदायत भी यही है और हिदायत का रास्ता भी यही है, क्योंकि इसको खोले बगैर हमें पता ही नहीं लग सकता कि अल्लाह और उसका रसूल चाहता क्या है, उनकी रज़ा क्या है, उनकी मंशा क्या है। वैसे हमें बताने के लिए हर कोई बता सकता है कि अल्लाह ये चाहता है ये कर लो, अल्लाह का रसूल ये चाहता है ये कर लो, लेकिन हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल क्या चाहते हैं वो ये किताब बताएगी। और फिर ये है कि दूसरे के अमल से नफ़ा या ज़रर पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि अगर कोई एक बंदा हो जो मोमिन हो, मुसलमान हो, सारी ज़िंदगी वो अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक ना खोले, कुरान ना खोले, मरने पर ये गुमान करे कि लोग मेरे ऊपर आएंगे, फातिहा खानी करेंगे, यासीन के ख़त्म पढ़ेंगे, कुरान के ख़त्म पढ़ेंगे, क्या उस बंदे की बख्शिश हो जाएगी? ज़िंदगी में हालांकि वो पढ़ भी सकता है, पढ़ा हुआ भी है,
सिर्फ दुनिया के पीछे लग के उसने कुरान नहीं पढ़ा, तो क्या फिर हमारा पढ़ा हुआ उसके मरने पर उसको फायदा देगा? तो इसका ये है कि अल्लाह ताला ने ये हम पर एहसान और करम किया है कि जो शख्स जिस काम की इब्तदा राइंज करेगा, वो अगर नेकी का काम है तो उसको नेकियां मिलेंगी, अगर बुराई का काम है तो उसको बुराइयां मिलेंगी। इसमें इमाम मुस्लिम की एक हदीस है, वो सुना देती है, बहुत खूबसूरत है। हज़रत जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊन के कपड़े पहने कुछ देहाती हाजिर हुए, तो आपने उनकी बदहाली और ज़रूरत को देखा। फिर आपके पास जो लोग बैठे थे उनको सदका की तरगीब दी कि सदका, भाई सदके के बारे में बताया होगा। तो कुछ लोगों ने ताकुफ किया, आपके चेहरे अनवर पर कबीदगी के आसार जाहिर हुए कि भाई ये लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। और फिर ऐसा हुआ, एक अंसारी दिरहमों की थैली लेकर हाजिर हुआ, तो यक्के बाद दीगरे लोग उसके पीछे आकर खड़े होने लग गए और सदका देने लग गए, तो आपके चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हुए। तो तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुसलमानों में किसी नेक काम की इब्तदा की, उस पर लोग अमल करते रहे उस तरीके पर, तो जब तक लोग अमल करते रहेंगे उस बंदे को अजर मिलता रहेगा। इसी तरह फिर बुराई का काम जिसने शुरू किया, जो लोग उस बुरे काम में मुलविस रहेंगे तब तक उस बंदे को उसका गुनाह मिलता रहेगा और उसके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। जिस तरह नेक काम करने के इब्तिदा करने वाले के अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो ये इससे मालूम होता है कि नफ़ा भी मिलता है और नुकसान भी हमें मिलता है। ये वाज़ेह हदीस है, सही मुस्लिम की दूसरी जिल्द की हदीस है। तो साबित हुआ कि हम जो भी काम करें, नेकी का या बुराई का, उसके बाद जो लोग उस तरीके पर राइंज रहेंगे, अमल करेंगे, उसका अजर और सवाब हमें मिलेगा। अगर वो बुरा है तो हमें बुराई मिलती रहेगी। तो इस तरह हमने इब्तिदा में एक बात भी पढ़ी थी कि जिस शख्स को भी जुल्मन कत्ल किया जाएगा, उसके गुनाह के एक हिस्सा आदम के बेटे काबील का, जिसने हाबील को जुल्मन कत्ल किया गया था, उसके पास जाएगा, क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने कत्ल किया था। तो यानी क़यामत तक जितने जुल्मन कत्ल होते रहेंगे, उनके गुनाह का एक हिस्सा आदम के बेटे को लाजमी जाएगा। तो अब हम जो इब्तिदा करके जाएंगे, क़यामत तक उसका अजर या गुनाह, जिस चीज़ की भी हम इब्तिदा करेंगे, उसका अजर या गुनाह हमारे हिस्से में क़यामत तक आता रहेगा, बेशक हम रहें या ना रहें। तो फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो तुम भूल कर, गलती से या फिर यानी जल्दी में कोई खता सरजद करते हो तो उसका गुनाह तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम क्या करो, सिर्फ मुझसे तौबा और इस्तगफार करते रहना। थोड़ी सी 2-3 बातें हैं साबका उम्मतों पर किस तरह आजमाइश होती थी। उसमें यह था कि उन पर 50 नमाजें फ़र्ज थी और ज़कात में उनका चौथाई माल अदा करना फ़र्ज था और नजस कपड़ा काटे बगैर पाक नहीं होता था। हम तो सिर्फ पानी से पाक करते हैं ना, वो जब तक काटते नहीं थे पाक नहीं होता था। उनका माले गनीमत हलाल नहीं था, मस्जिद के सिवा कहीं और वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे और तयम्मुम की सहूलत नहीं थी, कुर्बानी के खाने की इजाज़त भी नहीं थी और गोश्त, ऊँट का गोश्त हराम था, चर्बी हराम थी, हफ्ते के दिन को वो शिकार नहीं कर सकते थे। इसी तरह कोई गुनाह करते तो फ़ौरन दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाती थी। कसास में कत्ल करना लाजिम था, शिर्क की तौबा करना यानी तौबा कत्ल करना थी। जो शिर्क करता था उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाता था। जिस उज़्व से गुनाह करते थे उसको काट दिया जाता था और दैत की सहूलत नहीं थी। बाज़ गुनाहों की सज़ा में उनकी सूरतों को मसख करके बंदर या खंजीर बना दिया जाता था। ये उनकी आजमाइश थी, लेकिन उम्मत मोहम्मदी पर ऐसी कोई आजमाइश भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे दरमियान हैं और अल्लाह का वादा है जब आप जिनके दरमियान हैं उन पर ऐसी कोई गुनाह या कोई भी बदहाली वाली सज़ा उनको दुनिया में नहीं दी जाएगी। तो 2 आयतें हैं जो सूरत अल बकरा की, उनके बारे में हज़रत उक़बा बिन आमिर से रवायत है,
आखिरी 2 आयतों को बार बार पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ने इनकी वजह से सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी थी। और फिर ये है कि जो बंदा इन आयतों को 3 रातें पढ़ेगा तो उसके घर में से शैतान होगा तो वो हट जाएगा। और सूरत अल बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे से दी गई हैं, और आप ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अर्श के नीचे से दी गई हैं, मुझसे पहले किसी और उम्मत को ये आयतें नहीं दी गई। तो ये इन आयतों की फजीलत भी है, इनको पढ़ना चाहिए। रात को सोने से पहले 1-1 बार 3-3 बार बंदा पढ़ ले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।